یہ بات ہے آج سے لگ بھگ 70 سال پرانی کہ جب 3 چرواہے یا دوسرے شبدوں میں کہوں تو 3 بھیڑ چرانے والے عربی لوگ فلسطین کے پہاڑوں میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک سے ان کو دور سے ایک پہاڑ میں ایک گفا کہ جس کو ہم لوگ غار بھی کہتے ہیں وہ نظر آئی۔ وہ تینوں لوگ جب اس گفا کے اندر گئے تو وہاں پر ان لوگوں کو 2 مٹی کے جارز ملے، اور جب ان لوگوں نے ان جاروں کو بھی کھولا تو اس کے اندر کچھ پیپرز تھے، یا کہوں تو کچھ بہت پرانے سے نظر آنے والے کاغذ وغیرہ تھے۔ انہوں نے اس کو دیکھا تو دیکھ کر یہی لگا کہ یہ کوئی ایسی ہی چیز ہے، مطلب کسی کام کی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ جارز اور وہ پورا سامان کافی پرانا اور عجیب و غریب لگ رہا تھا تو اسی لیے ان کو امید تھی کہ یہ بیچا جا سکتا ہے، اس کے بدلے میں ایک رقم مل سکتی ہے، اسی لیے وہ اس کو بازار لے کر گئے اور انہوں نے ایسی تھوڑی بہت رقم کے بدلے میں اس کو بیچ ڈالا۔ اس کے بعد یہ پرانے سے کاغذات کسی نہ کسی طریقے سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے امریکہ کے ایک ویگیانک جن کا نام جان سی ٹریور ہے اور جو ایک مشہور آرکیولوجسٹ بھی ہوا کرتے تھے ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو کچھ وقت کے اندر ان کو یہ سمجھ میں تو آ چکا تھا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہودیوں کی کتاب تورات ہے، لیکن کیونکہ یہ بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے لکھی ہوئی تھی اور آج کی جو تورات ہے اس سے پوری طریقے سے الگ محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے اس پر اور بھی زیادہ ریسرچ کرنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو اب ان امریکی ویگیانک نے کیا یہ کہ اپنے دور میں دنیا کا جو سب سے پرانا تورات کا نسخہ موجود تھا جو لگ بھگ 1800 سال پرانا تھا اس کو منگایا، اور غار میں ملنے والی یہ جو تورات کی کاپیز تھیں، یہ جو پیجز تھے، ان سے ملانا شروع کیا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ غار میں ملنے والی تورات کا جو اسٹائل تھا، جو انداز تھا لکھنے کا، وہ سب کچھ اس 1800 سال پرانی تورات کی کاپی سے میچ ہو رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات تو کنفرم ہو ہی چکی تھی کہ غار سے ملنے والے یہ پیجز کوئی عام پیجز نہیں ہیں بلکہ یہ تو دنیا کی سب سے پرانی تورات کی کاپیز ہیں۔ لیکن اب یہ ایگزیکٹلی کتنی پرانی ہیں یہ جاننے کے لیے جان سی ٹریور نے ان کاغذات کی کاربن ڈیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، مطلب ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کی عمر کتنی ہے، اور پھر جو نتیجہ نکل کر آیا اس نے تو جان سی ٹریور کے بھی ہوش اڑا دیے، کیونکہ یہ جو پیجز تھے یہ لگ بھگ 2200 سال پرانے تھے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ فلسطین کی ایک عام غار میں ایک عام چرواہے کو ملنے والے یہ جو کاغذات تھے یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے بھی 200 سال پہلے کے تھے۔ اب ساتھیوں، کہنے کو یہ کوئی پوری تورات نہیں تھی، پوری کتاب نہیں تھی، بلکہ بہت سارے پیجز کا ایک مجموعہ تھا، ایک اسکرول تھا، لیکن ہاں پھر بھی اس کے اندر تورات کے بہت سارے الگ الگ پورشن موجود تھے۔ اس اسکرول کی شروعات میں یہودیوں کے آئزیہ نام کے ایک پروفیٹ، ایک پیغمبر کا ذکر تھا کہ جو آج سے لگ بھگ 2800 سال پہلے اس دنیا میں ہوا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ ان کو عیسائی اور مسلمان بھی ایک سچا نبی مانتے ہیں۔ شروعات میں ہی ان پیغمبر کا ذکر اس لیے تھا کیونکہ ان پیغمبر نے اپنے دور میں کچھ پروفیسیز کی تھیں، مطلب کچھ بھوشواڑیاں کی تھیں اور بتایا تھا کہ فیوچر میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ان کی جو پہلی پریڈکشن تھی وہ بخت نصر سے ریلیٹڈ تھی۔ ویسے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ بخت نصر کو جانتے ہی ہوں گے، ہم اپنی پرانی کئی ویڈیوز میں اس بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن اگر پھر بھی نہیں پتا ہے تو موٹے موٹے طور پر بتا دوں کہ دراصل یہ بابل کا وہی ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے بالکل ہٹلر کی طرح ہی کسی دور میں یہودی قوم کو پوری طریقے سے تباہ کر ڈالا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا تھا، جبکہ باقی بچے ہوئے یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل لے گیا تھا۔ تو پریڈکشن مطلب کہ بھوشواڑی یہ تھی کہ ابھی تو بھلے ہی بخت نصر ہمارے اوپر خطرناک ظلم و ستم کر رہا ہے، مگر بہت جلد ہی ایک انسان اٹھے گا اور اس کی پوری حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، اور یہودیوں کو وہ اپنے علاقے میں واپس بھی لے کر جائے گا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ غار میں ملنے والا تورات کا یہ جو 2200 سال پرانا نسخہ تھا اس میں لکھی ہوئی یہ جو پہلی بھوشواڑی تھی یہ اس سے 300 سال پہلے ہی پوری ہو چکی تھی، وہ بھی ایران کے مشہور بادشاہ سائرس دی گریٹ کے ذریعے سے۔ وہی سائرس دی گریٹ کے جن کے بارے میں بہت سارے اسکالرز یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید یہ وہی ذوالقرنین ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اب یہاں پر آپ میں سے بہت سارے لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، اس لیے کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو غار میں تورات کا نسخہ ملا ہے یہی 2200 سال پرانا ہے، لیکن جن پیغمبر علیہ السلام نے یہ پریڈکشنز کی تھیں، یہ بھوشواڑی
भविष्यवाणियां की थीं वो 2200 साल पुराने नहीं हैं, बल्कि वो तो इससे भी कई सदियां पीछे के हैं। तो इसीलिए आज से 2200 साल पहले जिस किसी ने भी तौरात का ये खास नुस्खा लिखा होगा, उसने या तो किसी दूसरी तौरात से उसको सिर्फ नकल किया होगा, या किसी दूसरी किताब से नकल किया होगा, या फिर कहीं और किसी और सोर्स का सहारा लिया होगा। अब आते हैं इस नुस्खे में लिखी गई दूसरी भविष्यवाणी की तरफ कि जो इन मशहूर प्रोफेट की तरफ से की गई थी। यही वो प्रेडिक्शन है कि जो तौरात के इस नुस्खे के लिखे जाने के वक्त तक भी पूरी नहीं हुई थी, और यही वो प्रेडिक्शन है कि जिसकी वजह से ही आप में से ज्यादातर लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। गार में मिलने वाली दुनिया की सबसे पुरानी तौरात में ये भविष्यवाणी कुछ इस तरह से है कि देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मैं अपनी रूह को उसमें डालूंगा और वो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो जमीन पर इंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और ना ही उसको कोई कुचल सकेगा। मैं बुतों को अपनी तारीख छीनने नहीं दूंगा, और जिन आबादियों में केदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं, और सेला के लोग पहाड़ियों पर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। अब ये तो ऊपर ऊपर से आप लोगों को भी क्लियरली समझ में आ ही गया होगा कि इस प्रेडिक्शन के जरिए से गॉड की तरफ से भेजे जाने वाले किसी खास बंदे, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्रॉफेट के आने की भविष्यवाणी की जा रही है। लेकिन आने वाला ये पैगंबर कौन होगा, कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, इन सब चीजों से रिलेटेड भी कुछ साफ इशारे दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर केदार के लोगों का जिक्र किया गया है। अब सवाल है कि आखिर ये केदार कौन हैं? तो दोस्तों केदार कोई और नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, यानी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके जो दूसरे बेटे थे उनका नाम केदार हुआ करता था। उनकी नस्लों ने अरब के इलाके पर एक बड़ी सल्तनत कायम की थी। अरब की एक बड़ी आबादी उन्हीं की नस्ल से थी, और इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल से थे। साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए कि इसमें बुतों का जिक्र भी हुआ है, और उस दौर में मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों के मुकाबले में सऊदी अरबिया में बुतों की सबसे ज्यादा इबादत की जाती थी। इसके अलावा इसमें सेला के लोगों को पहाड़ी पर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाने को भी कहा गया है। तो अब सवाल ये भी बनता है कि आखिर ये सेला कहाँ पर है? आप में से बहुत सारे लोग हैरानी से शायद सर पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी तौरात में जिस सेला का जिक्र किया गया है, पुराना दौर तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अगर आप लोग आज कि जब दुनिया इतनी ज्यादा बदल चुकी है तब भी गूगल पर सर्च करेंगे या फिर गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को वो पहाड़ नजर आएगा कि जो न सिर्फ सऊदी अरबिया के मदीना शहर में मौजूद है, बल्कि मदीना शहर में भी जो खास मस्जिद नबवी है उससे बमुश्किल 500 से 600 मीटर दूर है। हाँ दोस्तों सही सुना, 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। अब साथियों किस्सा मुख्तसर ये है कि यहूदी लोगों को उनकी किताब तौरात के जरिए से ये बात पहले ही बता दी गई थी कि एक खास पैगंबर आने वाला है, वो भी अरब के इस खास इलाके में। इसीलिए अगर आप लोग इतिहास पर गहरी नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहूदी लोगों ने पिछली कई सदियों से ही धीरे धीरे अब फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों से मदीना के आसपास के इलाके में आकर आबाद होना शुरू कर दिया था। बल्कि अब तो उन्होंने अरब के पूरे इलाके में उस खैबर को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, अपना गढ़ बना लिया था, जो बिल्कुल मदीना के सबसे करीब में मौजूद था। स्कॉलर्स लिखते हैं कि मदीना और इसके आसपास के जो बाकी अरबी लोग थे वो यहूदियों की नॉलेज और इनके जो बिजनेस करने का तरीका था इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। अब आसपास के इलाकों के अलावा मदीने में भी जब यहूदियों की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगी थी और आबादी अच्छी खासी हो गई थी तो मदीना के बाकी अरबी लोगों में और यहूदियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगा था। और जब भी इनके बीच झगड़ा होता तो अक्सर यहूदी अरबी लोगों को ये धमकियां देते कि अभी तो तुमको जो करना है कर लो, हमको सता लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तो हम तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और धीरे धीरे अब मदीने के लोग भी डरने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में यहूदियों का कोई प्रॉफिट आ जाए और हम लोगों को खत्म कर डाले। तो कुल मिलाकर मदीने के अंदर पिछले एक लंबे वक्त से, मतलब जनरेशन टू जनरेशन या दूसरे शब्दों में कहूँ तो नस्ल दर नस्ल, ये बात घोल कर पिला दी गई थी कि हाँ मदीने के अंदर कोई प्रॉफिट तो जरूर आने वाला है। हाँ वो बात अलग है कि यहूदी लोगों को ये बात पॉजिटिव तरीके से बताई गई थी क्योंकि उनको उस प्रॉफिट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। तो वहीं दूसरी तरफ अरबी लोगों को ये बात धमकी के तौर पर बताई जाती थी यहूदियों की तरफ से। लेकिन दोनों ही पार्टीज को इस बात का यकीन हो चुका था कि हाँ प्रॉफिट तो जरूर आने वाला है। साथियों इंतजार में मुद्दतें गुजर गईं, मगर तभी अचानक से वो दिन भी आ गया कि जब मक्का से एक इंसान मदीना पहुंचा। उसने मदीना वालों को पहले इस्लाम की दावत दी और उसके बाद बताया कि मक्का शहर के अंदर खुदा का एक पैगंबर आया है, लेकिन खुद मक्का वाले ही उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं।
मदीना वालों ने जैसे ही एक पैगंबर के बारे में सुना, उनसे जुड़ी हुई सारी निशानियों के बारे में सुना, सारी चीजें जानी, तो वो फौरन हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ये फौरन महसूस किया कि हो ना हो ये वही पैगंबर है कि जिसका जिक्र यहूदियों की किताब में मौजूद है और जिसको लेकर यहूदी लोग हमको पिछले एक लंबे वक्त से धमकाते आ रहे हैं। बाद में मदीना के लोगों ने जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो उनका ये शक, उनका ये वहम अब तो यकीन में बदल गया, और इस तरह से मदीना के लोगों ने दुनिया में सबसे पहले बढ़ चढ़कर इस्लाम अपना लिया। मगर दूसरी तरफ जब मदीना के यहूदियों को इस बात की खबर हुई तो वो तो कश्मकश में पड़ गए। वो सोचने लगे कि एक पैगंबर, और वो भी अरबी बोलने वाला, अरबियों में पैगंबर कैसे हो सकता है। उन्होंने फौरन डिनाई कर दिया कि उनकी किताबों में जिस पैगंबर के आने का जिक्र है, जिस पैगंबर की निशानियां बयान की गई हैं, वो ये पैगंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका ताल्लुक तो इतिहास के बाकी ज्यादातर पैगंबरों की तरह हमसे होगा, मतलब कि वो यहूदी नस्ल होगा या कहें तो उनकी जबान बोलने वाला होगा। हालांकि बहुत सारे यहूदी ऐसे भी थे कि जिन्होंने बाद में आगे जाकर इस्लाम अपनाया भी, न सिर्फ अपनाया बल्कि शुरुआती सालों में इस्लाम के सर्वाइवल के लिए जो बहुत सारी जंगें हुई थी उनमें हिस्सा लेकर शहीद भी हुए। दोस्तों, आज की अपनी इस नॉलेजेबल वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करें उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर को कवर करता हूँ उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।